Assalamualaikum students. Today our new topic is inverse trigonometric functions. Before starting this new chapter, that is inverse trigonometric functions, let's recall a basic concept. If f is a function from set A to B is both, number one, it is one function, number two, it is onto function. That is, if f is bijective function, then there exists another function, say g, from B to A, set B to A, called, then g is called inverse of f, and is written as g is equal to f inverse. Means if the function is both one and onto function, then the function is known as bijective function, and if it is bijective function, then the function from g, that is from set B to set A, is called the inverse of this function, that is f. Now, what is one function? What is onto function? Now, what is one function? Let's write the definition first. The function that maps the distinct elements of domain to the distinct elements of codomain, called one function. But algebraically, if we suppose the value of function at x1 is equal to the value of function at x2, after solving, give me x1 is equal to x2, then we can say the function is one function. Now, ये जो यहाँ पर ये पॉइंट्स है आपने इससे पहले वाले पार्ट, दैट इज रिलेशन और फंक्शन में पढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत रोशनी यहाँ पर डालता हूँ. So now what is onto function? What is onto function now? Onto function. Simply, that is, if the range of function is equal to the codomain of the function, then we can say the function is onto. That is, we write here, if the range of function is equal to the codomain of the function, then the function is onto. If any function will satisfy both the functions, that is one case and the onto case, then the function is known as bijective function. Now, if the function is bijective, then we can say the function is invertible. If the function is invertible, then we can say the inverse exists. Now, why this bijectivity is necessary for finding the inverse of any function? Let's discuss. सपोज ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है. ए सेट में मेरे पास ए बी सी एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर इसमें 1 2 3 है, और मैं यहाँ पर एक ऐसी मैपिंग बना रहा हूँ से ए रिलेटेड है 1 से, बी रिलेटेड है 2 से, सी रिलेटेड है 3 से, और इसमें मैं और एक एलिमेंट डाल रहा हूँ 4.
ये जो डायग्राम यहां पर है ये शो कर रहा है, आप देखो, एज पर द डेफिनेशन ऑफ वन फंक्शन, दिस एफ मैप्स द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन टू द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन, देयरफॉर दिस फंक्शन इज वन फंक्शन। अगर अब ये वन फंक्शन है, सपोज मैं इसका अब इनवर्स निकालूंगा, क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए मेरे पास दोनों कंडीशंस जरूरी है, दैट इज वन एंड ऑन्टो। फिलहाल मैं यहां पर, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूं व्हाई द बाइजेक्टिविटी ऑफ ए फंक्शन इज नेसेसरी फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। सपोज ये इसका इनवर्स है, यहां पर मैं लिखूंगा b, यहां पर लिखूंगा a, यहां पर है 1 2 3 4, यहां पर a, यहां पर b, यहां पर c। अब ये a 1 इसके रिलेटेड है, b इससे रिलेटेड है, 3 इससे रिलेटेड है। अब मैं चेक करूंगा क्या ये मेरी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के साथ, ये उसके साथ सेटिस्फाई हो रहा है, क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है मेरी जो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है उसके साथ। क्योंकि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या कहता है, फर्स्ट केस क्या कहता है, वहां पर जो पहला सेट है आपको उसके सारे एलिमेंट्स सेट बी के साथ रिलेट होने चाहिए। लेकिन यहां पर एक ऐसा एलिमेंट है 4 जो कि किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। There is an element 4 which is not related to any element in set A. Therefore, ये फंक्शन ही नहीं है। If this is not a function, how we can find the inverse of this function? ये पहले फंक्शन ही नहीं है तो हमें इनवर्स की बात क्यों करेंगे? मीन्स इसका मतलब कि खाली अगर एक फंक्शन खाली वन ही होगी तो वो काफी नहीं है किसके लिए, इनवर्स निकालने के लिए। अब हम बात करेंगे ऑन्टो की बात। क्या अगर फंक्शन ऑन्टो होगी क्या वो काफी है इनवर्स निकालने के लिए किसी फंक्शन का? तो हम देखेंगे। सपोज मेरे पास सेट ए है, इधर आप इसमें ए बी सी है, और इधर मैंने लिया और एक सेट बी जिसमें है 1 2 3, और ए इसके साथ मैंने लिया, बी इसके साथ, और सी इसके साथ, यहां पर मैंने लिया डी एलिमेंट जो इसके साथ है, और मैंने इस फंक्शन का नाम दिया है जी। दिस फंक्शन इज नॉट वन फंक्शन, ठीक है, बट दिस फंक्शन इज ऑन्टो फंक्शन। क्योंकि मैंने आपको बोला अगर किसी फंक्शन का रेंज किसके बराबर आ जाएगी, उसके कोडोमेन के बराबर, तब मैं क्या कहता हूं, फंक्शन इज ऑन्टो। यहां पर रेंज ऑफ द फंक्शन इज, अगर मैं लिखूं रेंज क्या है 1 2 3 1 2 3, तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन सेट बी में भी वही एलिमेंट्स 1 2 3। तो ये यहां पर मुझे शो कर रहा है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन्टो फंक्शन है। सपोज मैं मान लेता हूं यहां से इसका इनवर्स, सपोज ये इसका इनवर्स है, एक्चुअल ये इसका इनवर्स है नहीं, मैं मान लेता हूं, ठीक, ये b इधर है, ये a इधर है, इसमें है 1, इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें a b c d, ठीक है। अब ये जो a है ये 1 के साथ रिलेटेड है तो मैं इसके साथ लेता हूं, और यहां b 2 के साथ है, और c यहां से c 2 के साथ है, और ये ऑटोमेटिक इसके साथ। अब मैं यहां पर चेक करूंगा, पहला जो फंक्शन की डेफिनेशन वो क्या कह रही थी, इधर मैंने आपको दिखाया था, वो कहता था डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में सेट ए के सारे, यानी सेट ए हियर फर्स्ट मींस फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स रिलेट होने चाहिए सेट बी के साथ। बट यहां पर हमने क्या देखा, 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं है। अब यहां पर मैं देख रहा हूं जो दूसरा स्टेप है फंक्शन का, वो क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। यहां पर देखो, यहां पर 2 है जिसकी 2 इमेजेस है, 2 बी के भी साथ है, 2 सी के भी साथ है,
तो ये भी कंट्राडिक्ट कर रहा है किसके साथ, मेरी फंक्शन के साथ, मेरी डिफिनेशन ऑफ फंक्शन के साथ। देयरफॉर इफ दिस इज नॉट अगेन ए फंक्शन, अगर ये फंक्शन नहीं है तो मैं कैसे इसका इनवर्स निकालूंगा, हाउ वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर खाली फंक्शन ऑन्टो होगी, अगर खाली फंक्शन ऑन्टो होगी तो वो काफी नहीं है किसके लिए, इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन अब मैं ऐसी एग्जांपल लूंगा आपके सामने जो बोथ, एक तो 1 1 होगी और दूसरी क्या होगी, ऑन्टो होगी, फिर हम चेक करेंगे क्या वो इनवर्स के लिए काफी है। अब यहां पर सपोज ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहां पर ए, यहां पर बी, 1 2 3 इधर मैंने लिया, इधर ए बी सी, और मैंने इसको इसके साथ मैप किया, इसको इसके साथ मैप किया, 3 को सी के साथ, और इधर मैंने मान लिया दिस इज एफ फंक्शन। आप देखो डायग्राम के हिसाब से ये दोनों रिप्रेजेंट करता है, दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है, 1 1 की भी डेफिनेशन और ऑन टू की भी डेफिनेशन। सो दिस इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अगर देखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कोड डोमेन, ठीक है, फंक्शन मैप कर रही है, फंक्शन मैप्स different elements of domain to the different elements of the codomain, therefore it is 1 1. and other one, that is other case, जो यहाँ पर कोडोमेन है that is B, और रेंज क्या है A B C, means range is equal to the codomain, therefore ये दोनों है, एक तो ये 1 1 फंक्शन है और दूसरा क्या है, and this is onto function। ये दोनों फंक्शन है, हम दोनों फंक्शन को मिलके क्या कहते हैं, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, देयरफॉर दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, अब मैं यहां से इनवर्स निकालूंगा इसका, अब मैं चेक करूंगा क्या प्रीवियस वाले केसेस मत तो बनते हैं, ठीक है। यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, 1 2 3, ये बी सेट है, ये ए सेट है। अब ये इसके साथ मैप है, ये इसके साथ मैप है, ये इसके साथ मैप है, और ये मान लेता हूं मैं जी। यहां पर कोई ऐसा केस नहीं है जो डिफिनेशन ऑफ फंक्शन के साथ कंट्राडिक्ट कर रहा है, मीन्स ये तो फंक्शन भी है और दूसरा इसको मैं मान लेता हूं ये इसका इनवर्स भी है, क्योंकि ये जो फंक्शन है यहां पर ये जो ये है वहां ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के साथ कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये g जो है ये इस f का इनवर्स है, here g is equal to f इनवर्स। तो इसीलिए जो बाइजेक्टिविटी ऑफ फंक्शन है इट इज नेसेसरी फॉर द इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब जो अगर हमें किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो दैट इज, अगर हमें किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है बाइजेक्टिविटी इज नेसेसरी, मींस तब फंक्शन दोनों के सेटिस्फाई करनी चाहिए, मींस फंक्शन 1 1 भी होनी चाहिए, फंक्शन ऑन टू भी होनी चाहिए। लेकिन अब हमारा टॉपिक ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या सारे फंक्शंस 1 1 होते हैं? क्या सारे फंक्शंस का हम इनवर्स निकाल सकते हैं? क्या सारे फंक्शंस ऑन टू होते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्चुअली आपके पास 6 फंक्शंस होते हैं, आपको पता है। आपके पास sin x होता है, आपके पास cos x होता है, आपके पास tan x होता है, और इनका रेसिप्रोकल cosec x, sec x एंड cot x। अब उन पे हम बात करेंगे, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जनरल में इनवर्स एग्जिस्ट होता है? अगर होता है तो कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिससे हम उनका इनवर्स निकालते हैं? तो हम उस पे अब रोशनी डालेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली फंक्शन में लूंगा यहां से y इज इक्वल टू साइन x की बात में करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री साइन x, साइन फंक्शन की बात करूंगा। क्या ये साइन फंक्शन 1 1 फंक्शन है? क्या ये साइन फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? क्या साइन इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट है? अब बात करेंगे। मैं फिलहाल एक फंक्शन क्रिएट करूंगा यहां पर, दैट इज रियल वैल्यूड फंक्शन r टू r। ऐसी फंक्शन बना रहा हूं जिसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है और उसका कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स, और लिख रहा हूं f of x इज इक्वल टू sin x।
लेकिन ये भी आपको पता है कि साइन एक्स का डोमेन आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, इसका मिनिमम वैल्यू होता है 1 और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। देन इसकी रेंज यहाँ पर, ये है इसकी रेंज। अगर मैं ग्राफ डालूंगा साइन एक्स का यहाँ, तो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का होगा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। मैं इसका ग्राफ पहले डालूंगा। इसका रफ स्केच ये है। साइन 0 0 होता है और आपको पता है इस पे ये 1 1। तो ग्राफ का कुछ नेचर इस टाइप का होगा। इस टाइप का ग्राफ। आपने और एक चीज पढ़ा है रिलेशन एंड फंक्शन में, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। एक ग्राफिकल टेस्ट है जिससे हम चेक करते हैं कि फंक्शन का 1 1 है। वो टेस्ट क्या बता रहा है हमें, अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन किसी कर्व को सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा तब हम उसको कहते हैं दिस इज अ 1 1 फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया यहाँ पर पैराबोला का ग्राफ इधर, अगर मुझे जनरल में चेक करना है कि ये जो ग्राफ, ये आपको पता है दिस इज एक्चुअली y इज इक्वल टू x, क्या ये 1 1 फंक्शन है, मैं एक सिंपल लाइन डालता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर उस हॉरिजॉन्टल लाइन ने उस कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है तब मैं कहता हूं वो फंक्शन 1 1 नहीं है। यहां पर क्या है आप देखो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस पैराबोला को 2 जगह पे कट किया है, मींस मोर देन 1 पॉइंट। सो इन जनरल मैं कहूंगा दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। अगर मैं वही केस इधर अप्लाई करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन डालूंगा इधर यहां पर, किसको, साइन एक्स की फंक्शन को, अगर मैं चेक करूंगा इधर, आप देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली, आप देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 मींस मोर देन 1 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन जनरल मैं कह रहा हूं साइन एक्स 1 1 फंक्शन नहीं है। बट टॉपिक इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमें तो इनवर्स निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी हमने पढ़ा कि बाइजेक्टिविटी जरूरी है इनवर्स निकालने के लिए। तो अगर ये 1 1 नहीं है, देयरफॉर ये बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसका इनवर्स कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो इसी पे यहां पर डिबेट करेंगे। देखो ये जो फंक्शन यहां पर है तो ये तो 1 1 नहीं है इधर। अगर मैं पहले में अलजेब्रिकली भी इसको शो करूंगा दिस इज नॉट 1 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ function at 0? 0 means f of 0 is equal to sine 0, which is equal to 0. And what is the value of function at x is equal to pi? अगर मैं f of pi लूंगा, this is also sine pi, that is equal to 0. तो इसका मतलब यहाँ पर f of 0 किसके बराबर है? f of pi के बराबर। f of 0 is equal to f of pi. तो मैंने डेफिनेशन में आपको बोला था 1 1 होने के लिए, क्या मैंने वहां पर बोला आपको कि f of x1 अगर मैं सपोज करूंगा किसके बराबर, f of x2 के बराबर, अगर मुझे उसने दिया x1 is equal to x2 तो मेरी फंक्शन 1 1 है। इफ नॉट देन द फंक्शन इज नॉट 1 1। तो यहां पर f of 0 is equal to 0, f of pi is equal to 0, दोनों का वैल्यू सेम है। क्या ये x1 है, ये x2 है, क्या यहां पर 0 is equal to pi? Not. 0 is not equal to pi. Means f of x1 is equal to f of x2, but x1 is not equal to x2. Therefore, we can say ये जो यहाँ पर sin x है, this is not 1 1 function in general. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ यहाँ पर इसको कुछ restrictions करेंगे। हम जो साइन फंक्शन है यहाँ पर साइन एक्स को, इसको हम डिवाइड करेंगे, इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे उन इंटरवल्स में उस साइन एक्स का बिहेवियर। पहला केस यहाँ पर, अगर मैं साइन एक्स को इधर, अगर मैं इसका डोमेन
इसका डोमेन रियल नंबर था इधर, दिस इज इस वाली केस में अगर इसका डोमेन क्या था रियल नंबर, इसका कोडोमेन इधर क्या था सेट ऑफ रियल नंबर्स आल्सो, लेकिन उसकी रेंज क्या थी -1, 1। अगर मैं इसका डोमेन -π/2 से लेकर π/2 तक रिस्ट्रिक्ट करूंगा, यानी कि मैं इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं किसके बीच में -π/2 टू π/2, मैं r को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं -π/2 से लेकर π/2 तक, और कोडोमेन को किसके बराबर रख रहा हूं इसके रेंज के बराबर। जो कोडोमेन यहां पर ये r है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे -1, 1 से, मीन्स दो चेंज मैं यहां पर कर रहा हूं। फिलहाल मैं इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कहां से -π/2 से लेकर π/2 तक, और इसके कोडोमेन यहां पर उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कहां से -1 से लेकर 1 तक। तो क्या होने वाला है देखो, जब मैंने रिस्ट्रिक्ट किया इधर, मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया -π/2 से लेकर π/2 तक, इधर रिस्ट्रिक्ट किया। अब जो ग्राफ का नेचर है, ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से है। ये वाला केस, ये खाली किसको है देखो आप, ये वाला इसके बीच में ये है ग्राफ, बस बाकी जितना भी ग्राफ है ना इसको अपने ध्यान से आप हटाओ, इसमें निकालो आप, ये सारा आप रिमूव करो और अपने जहन में रखो खाली इतना वाला पोर्शन, कहां से -π/2 से लेकर -π/2 तक। अगर मैं चेक करूं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से, मैंने डाला हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, और इस पोर्शन में मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को खाली एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट पे। तो इसका मतलब -π/2 से लेकर π/2 तक sin x 1 फंक्शन बन रहा है, ठीक है यहां पर। और दूसरा इसका जो यहां पर, क्योंकि मैंने कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, व्हाट इज द कोडोमेन इसका मैंने लिखा इधर -1, 1, और आल्सो इसकी रेंज क्या होती है -1, 1। दूसरे केस में इसका जो रेंज है वो किसके बराबर है कोडोमेन के बराबर, देयरफॉर दिस इज ऑन्टो फंक्शन। मींस जो ये इंटरवल है -π/2 से लेकर π/2 तक, जो sin x का ग्राफ मैंने डाला यहां से, ये वाला करूं दिस, ये 1, 1 भी है, ये ऑन्टो भी है। अगर ये इस पोर्शन में 1, 1 भी है ऑन्टो भी है, देयरफॉर दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है देन तब मुझे इजाजत है किसका, इसका इनवर्स निकालने के लिए। तो वो इनवर्स क्या होगा, अगर दूसरा यहां से अगर हम दूसरे पॉइंट्स पे भी बात करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि मैं -π/2 से लेकर π/2 की इंटरवल की बात करूं, नहीं। अगर आप इस इंटरवल की भी बात करोगे, किसकी π/2 से लेकर अगर आप बात करोगे 3π/2 तक, π/2 से लेकर 3π/2 तक, यू कैन चेक ऑल्सो द फंक्शन इज ऑल्सो 1, 1 एंड ऑन्टो। अगर मैं ऐसे लूंगा π/2 से लेकर 3π/2 कर लो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से, उसमें भी क्या आ जाएगी फंक्शन 1, 1 ऑन्टो। या ये जरूरी नहीं है, अगर मैं ये पॉइंट लूंगा -3π/2 से लेकर π/2 तक, इस वाले केस में भी आपकी फंक्शन 1, 1 ऑन्टो आ जाएगी। मींस बहुत सारे ऐसे ब्रांच ऑफ इंटरवल्स आपके पास आ जाएंगे, बहुत सारे आपके पास इंटरवल्स आ जाएंगे जिसमें आपकी फंक्शन sin x क्या बन जाएगी बाइजेक्टिव फंक्शन। वहां पर वो ऐसे इंटरवल्स में हमें इजाजत है उसका इनवर्स निकालने के लिए, लेकिन हम फोकस करेंगे सिर्फ किस इंटरवल की -π/2 की से लेकर π/2 तक, ठीक है। तब अब मैं ऐसी फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, यहां से मैं sin x को ऐसी कहां से, जिसका मैं डोमेन -π/2 से लेकर π/2 और कोडोमेन कहां -1 से 1 तक। अगर मैं फंक्शन sin x को इस इंटरवल तक रिस्ट्रिक्ट करूंगा, यहां से -π/2 से लेकर π/2 तक रिस्ट्रिक्ट करूंगा, और कोडोमेन को किससे रिप्लेस करूंगा -1 से, इसके रेंज से -1, 1 से, ठीक है। तो उस केस में जो आपकी फंक्शन है sin x वो 1, 1 भी बनती है और ऑन्टो भी बनती है। देन आई एम एबल टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज, अब मैं यहां से लिख रहा हूं इसका साइन इनवर्स ऑफ x, एंड दिस साइन इनवर्स ऑफ x मैंने बोला था वहां पर, if function from a to b is a bijective function, then the function from b to a means g function, that is known as the inverse of f.
अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसका इनवर्स निकाल रहा हूँ, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x। वो कहाँ से कहाँ होगा, -1 से लेकर 1 तक, जिसका रेंज होगी -π/2 से लेकर π/2 तक। मीन्स इस इंटरवल में मुझे आई एम एबल टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो साइन इनवर्स ऑफ x, मैंने एक फंक्शन क्रिएट की, इनवर्स फंक्शन किसका, साइन x का, साइन इनवर्स ऑफ x, जिसका डोमेन अब -1, 1 है, इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल -1, 1, और जिसकी रेंज क्या है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो ये मैंने एक फंक्शन की। हाँ, बहुत सारे ऐसे इंटरवल्स हैं, लेकिन ये जो मैंने एक इस पे फोकस किया, बिकॉज क्योंकि इस इंटरवल को कहते हैं प्रिंसिपल इंटरवल। इस इंटरवल को -π/2 से लेकर π/2 तक, इस इंटरवल को कहते हैं हम क्या, प्रिंसिपल इंटरवल। तो इससे क्या, इससे हम इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के साथ, हम अगर हम ऐसे रिस्ट्रिक्शंस करेंगे, तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या, इनवर्स निकाल सकते हैं। अदरवाइज इन जनरल नॉट, जनरल अगर जनरली आपसे पूछेगा, इन जनरल एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो sin x cos x उनका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। बट आफ्टर रिस्ट्रिक्टिंग इट इज डोमेन, वी आर एबल टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शंस। तो इसका मतलब हमने एक फंक्शन बनाई, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x, जिसका डोमेन -1 और 1, जिसकी रेंज -π/2 से लेकर π/2 तक। अब मैं थोड़ा बहुत इसका ग्राफ, तो डोमेन आपको पता है दिस इज -1 और ये 1, रेंज आपकी पता है दिस इज π/2 और ये है इसकी -π/2। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ, अगर मैं लिखूंगा इधर ये आ जाएगा, इस साइन इनवर्स ऑफ -1 इज -π/2, एक सेकंड, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज -π/2। तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से होगा। जब आप साइन इनवर्स ऑफ -1 डालोगे तो आपका बन जाएगा -π/2। जब आप साइन इनवर्स ऑफ 1 डालोगे इधर, साइन इनवर्स ऑफ 1 दैट इज π/2 इधर, तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से बन जाएगा आप। ठीक है, अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट, जो अब ये साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन है, इसका जो डोमेन हमने निकाला क्या है, वो -1 से लेकर 1 तक। ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। Number 1, that is the range of this function is -π/2 to π/2, both included, -π/2 and π/2. And this point number 2. Point number 3, that is this function is an increasing function. This function is an increasing function. What is an increasing function? Actually आप ये पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। मैंने बेहतर समझा कि यहाँ पर, ताकि हमारे ध्यान में ये रह जाएगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन हमें पढ़ना है आगे। अगर मैं देखूंगा व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ -1, -π/2, देखो इस वैल्यू पे मुझे ये आ रहा है, इस वैल्यू पे मुझे ये आ रहा है, इस वैल्यू पे मुझे ये आ रहा है। अब अगर आप चेक करोगे ये अगर आप चेक करोगे हर एक ये फंक्शन, जितना मैं इसकी तरफ यहाँ से उधर की तरफ जा रहा हूँ, द फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स दिस इज नोन एज मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन कौन सी फंक्शन होती है, जो द फंक्शन विच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दोनों नहीं, एक दोनों में से एक, वो फंक्शन जो या इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। ये तो इंक्रीजिंग है, therefore this is known as increasing function. More particularly this is known as the monotonic function. The point number 4, this is the bounded function. Bounded function. देखो मैंने बॉक्स बनाया, बॉक्स यहाँ से मैंने बनाया। बाउंडेड फंक्शन का मतलब उसका जो आपका लोअर बाउंड है -π/2 और अपर बाउंड है π/2। आपका लोअर, आपके पास लोअर बाउंड भी है, आपके पास अपर बाउंड भी है। अगर
कोई भी सेट हो आपके पास, अगर उसमें आपके पास लोअर बाउंड मीन्स लोवेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगा, तब हम उस फंक्शन को कहते हैं दिस इज द बाउंडेड फंक्शन। तो यहाँ पर भी ये बाउंडेड फंक्शन है, मीन्स इस इंटरवल के बाहर आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, ऑल द वैल्यूज, जो भी कोई वैल्यू आ जाएगा वो इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ